Hello everyone, this is Dhirendra and you are watching your own channel English Junction A to Z. In this session I am here with a thought-provoking video. It might be very helpful in finding out the biggest reason behind most of the failures. और इसको समझने के बाद जब मुझे सफलता मिली, मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली, तो मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति को इससे ज़रूर प्रेरणा मिलेगी और वो ज़रूर आगे बढ़ेगा. बट बिफोर आई मूव अहेड, आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब द चैनल if not done yet. And yes, don't miss to press the bell icon to remain updated with my future uploads. Watch the video till the very end and don't forget to like, comment and share if you find it useful in any way. So friends, let's begin. John Mason says, when it comes to excuses, the world is full of amazing inventors. Making an excuse for some failure is a very common scenario throughout the world. आपने भी अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो किसी भी काम में विफल होने के बाद हमेशा किसी न किसी बहाने के साथ तैयार रहते हैं. But have you ever wondered when you make a mistake and then make an excuse for it, you have made two mistakes. यह आपकी दोहरी गलती है. आपने गलती करी और उसके बाद आपने उस गलती के लिए बहाना बनाया. सो दिस इज अ काइंड ऑफ मेकिंग टू मिस्टेक्स. एक्सक्यूजेस अबाउंड, भरी पड़ी हैं एक्सक्यूजेस, बहाने भरे पड़े हैं. एन अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन मेक्स एक्सक्यूजेस ऑफ लैक ऑफ फंड्स, मैन पावर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक स्लो डाउन एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इसी तरीके एन अनसक्सेसफुल एजुकेटेड पर्सन is always ready with excuses of not getting that level of teachers. मुझे अगर और अच्छे टीचर्स मिले होते, और अच्छा स्कूल मिला होता, और अच्छा कॉलेज मिला होता, कोचिंग्स, टेक्नोलॉजिकल एड्स लाइक कंप्यूटर, हाई स्पीड इंटरनेट, lack of time, etc. etc. An unsuccessful sports person gives alibis like not being given sufficient time and resources by parents at young age. बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, बताते हैं, काश बचपन में जब मेरे अंदर इस गेम का जुनून था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझा होता, मुझे पर्याप्त समय दिया होता, मुझे संसाधन दिए होते, और बहुत सारे बहाने like his talent being crushed under pressure of studies, not getting proper coaches and academy, unfair selections, etc. etc. तो दुनिया के हर एक क्षेत्र में आपको ऐसे बहाने बनाने वाले लोग ज़रूर मिलेंगे. But they all know deep down in their heart that they, only they, are responsible for not having achieved what they had dreamt. Famous poet William Blake said, "The fox condemns the trap, not himself." लोमड़ी जब जाल में फंस जाती है तो जाल को ही दोषी मानती है, स्वयं को नहीं. The same is with human beings. It would have been better if such excuses would have been replaced by introspection and action. काश ये बहाने बनाने की बजाय हम सोचते, विचार करते और उन कमियों को दूर करने के लिए उसी अनुसार कार्य करते. When you use excuse, you give up your power to change and improve. You can fall down many times, but you won't be a failure until you say that someone else pushed you. आप गिर सकते हैं, बहुत बार गिर सकते हैं. आपको याद होगा बचपन में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो साइकिल सीखते समय गिरा ना हो, लेकिन बच्चे ने ये बहाना कभी नहीं बनाया झूठ में कि मुझे उस बच्चे ने धक्का दे दिया, उसने टक्कर मार दी इसलिए गिर गया. नो, उसको पता था कि मैंने गलत तरीके से साइकिल को पकड़ा, उसके हैंडल को नहीं बैलेंस किया, इस वजह से मैं गिर गया. वो फिर उठा, उसने फिर प्रयास किया और धीरे धीरे करके वो साइकिल चलाना सीख गया. सो द सेम थिंग हैपन्स विद अस. वी कैन फॉल डाउन मेनी टाइम्स बट वी वोंट बी अ फेलियर.
हम विफल नहीं कहलाएंगे until you shoulder that responsibility on someone else. अगर आप ये कहें नहीं मैं तो गिरता नहीं, लेकिन मुझे दूसरे व्यक्ति ने धक्का दे दिया. Admit your errors and wrong approach. अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए. Admit your shortfalls. अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए. Poet Arthur Gitterman writes, admitting errors clears the score and proves you wiser than before. There is no problem with failing and falling down. It happens with everybody. The problem begins when you aren't ready to improve yourself. When you don't stand up and give it a second try. गिर गए, no problem. लेकिन गिर के उठने की कोशिश नहीं करी. Then you would fail in each and every sphere of your life. Mark my words. Look at the life of any successful man from any walk of life, and you will find that he failed and fell several times before achieving that height of success where you see him now. ऐसा नहीं है कि कोई भी महान व्यक्ति, कोई भी सफल व्यक्ति बगैर किसी विफलता के, बगैर किसी रुकावट के, एक बार के प्रयास में ही वो इतना महान, इतना सफल व्यक्ति बन गया. नो, they must have failed, they must have fell several times. Michael Jordan, the greatest basketball player, said, I have missed more than 9,000 shots in my career. Mark the words, 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I have been trusted to take the game-winning shot and missed. I have failed over and over and over again in my life, and that is why I succeed. इतनी बार फेल हुए, इतने गलत शॉट्स मारे, इतनी बार फाइनल पेनल्टी शॉट्स, गेम विनिंग शॉट्स के लिए उनको सिलेक्ट किया गया मगर उन्होंने मिस कर दिया. इतनी विफलताओं के बाद भी उन्हें महानतम बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता है, बिकॉज एवरी टाइम ही एडमिटेड हिज फॉल्ट. ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेल्योर हिमसेल्फ एंड ही इम्प्रूव्ड अपॉन हिमसेल्फ. ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड ऑन हिज मिस्टेक्स. He didn't make an excuse that his teammates didn't coordinate well, कि भाई मेरे टीम के और जो सदस्य थे उन्होंने मेरे साथ अच्छे से सामंजस्य नहीं बिठाया. That his coach didn't listen to him, कि मेरे कोच ने मेरी बात नहीं मानी. I wanted this thing like that, but he didn't listen to me. That he didn't take it seriously. अरे ये मैच तो मैंने ऐसे ही खेला था, बहुत सीरियस होकर के नहीं खेला था, वरना मैं ज़रूर जीत जाता या मेरी परफॉर्मेंस बेहतर होती. सो ही डिडंट गिव सच काइंड ऑफ लेम एक्सक्यूजेस. ही सक्सीडेड बिकॉज ही एडमिटेड हिज फॉल्ट्स, हिज मिस्टेक्स, एंड ही वर्कड ऑन देम. सो डोंट स्पेंड हाफ योर लाइफ टेलिंग वॉट यू आर गोइंग टू डू एंड द अदर हाफ एक्सप्लेनिंग वाई यू डिडंट डू इट. देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है. दुनिया के हर एक कोने में आपको ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे. आधी ज़िंदगी उनकी गुजर जाती है सिर्फ प्लान करने में, लोगों को बताने में. 10th के बाद मैं ये करूँगा, 12th के बाद मैं ये करूँगा, मेरा ये प्लान है, मेरा वो प्लान है. और उसके बाद की आधी ज़िंदगी वो सिर्फ ये एक्सप्लेन करने में लोगों को जुट जाते हैं, लग जाते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, जो मैंने सोचा था मैं नहीं कर पाया, क्योंकि ये रीज़न था, वो रीज़न था, एंड दे कीप ऑन गिविंग एक्सक्यूजेस. So don't spend your life in telling what you want to do and the other half of the life explaining why you didn't do it. Instead, jump into action. इससे अच्छा होगा प्लान करने, बहाने बनाने से अच्छा है आप कार्य में लग जाएं. Be ready to face failures. और अगर विफलताएं आए तो उनके लिए तैयार रहें, क्योंकि ऐसा ज़रूर होगा. Because you know that each failure will make you better, wiser and lead you closer to your goal. An excuse is a foundation upon which one builds a house of failure. देखिए, बहाना एक ऐसी नींव है जिसके ऊपर आप विफलता का ही घर बनाएंगे. अगर आप बहाने बनाने में माहिर हैं, वक्त बेवक्त आप बहाने बनाते हैं, तो आप मान के चलिए that you would be a big loser in your life.
So decide yourself if you wish to live in this house of failure. Don't make excuses, make progress. बहाने मत बनाइए, तरक्की कीजिए. Never let a challenge become an alibi. चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियाँ आएंगी, मगर बहाने बनाकर उनसे बचने की कोशिश मत कीजिए. You have a choice. Let the obstacle be an alibi or let it be an opportunity. Had Edison and Wright brothers made excuses on their repeated failures, they wouldn't have tried and retried several times. एडिसन को कौन नहीं जानता, राइट ब्रदर्स को कौन नहीं जानता. उन्होंने भी शुरू में बहुत सारी विफलताएं देखी, बहुत बार उनका जो एक्सपेरिमेंट है, प्लान है, फेल हुआ. अगर उन्होंने भी बहाने बनाए होते और आगे कोशिश नहीं की होती तो क्या होता. कुड यू इमेजिन अ बल्ब लाइटिंग योर ड्राइंग रूम. आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि इस समय आपके कमरे में, आपके ड्राइंग रूम में बल्ब जल रहा होता, स्ट्रीट लाइट में बल्ब जल रहा होता. नो. एंड एरोप्लेन्स टेकिंग यू थाउजेंड्स ऑफ माइल्स इन कपल ऑफ आवर्स. और आज कुछ ही घंटों में हजारों मील दूर आप पहुंच जाते हैं एरोप्लेन्स की वजह से. अगर राइट ब्रदर्स ने तभी हार मान ली होती और बहाने बना देते तो आज आप एरोप्लेन में इतनी जल्दी इतना लंबा सफर तय नहीं कर पाते. सो दीज क्रिएटर्स fell but never ceased to have courage to stand up again. ये क्रिएटर्स, ये इन्वेंटर्स, डिस्कवरर्स, अचीवर्स, ये भी फेल हुए, ये भी गिरे, मगर दोबारा उठ खड़े होने का साहस था इनमें. They took the responsibility of the failures. इन्होंने विफलता की सारी जिम्मेदारी अपने सिर ली. किसी के लिए इनके मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, इन्होंने किसी को इसके जिम्मेदार नहीं ठहराया, बहाने नहीं बनाए. इम्प्रूव्ड अपॉन देमसेल्व्स एंड क्रिएटेड समथिंग इनक्रेडिबल. और कुछ ऐसा बनाया जो अविश्वसनीय था, जिसकी कल्पना भी उस समय नहीं की जा सकती थी. सो माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर द पर्सन हु रियली वांट्स टू डू समथिंग फाइंड्स अ वे. जो व्यक्ति वाकई में कुछ करना चाहता है उसको रास्ता जरूर मिलता है. द अदर्स फाइंड एक्सक्यूज. और जिन्हें नहीं कुछ करना उनको बहाने मिल जाते हैं. सो जस्ट हैव अ ब्रेक. थोड़ा सा समय निकालिए. थिंक अबाउट योर ड्रीम एंड द रीजंस यू कुडंट फुलफिल इट येट. आप थोड़ा सा समय निकाल के सोचिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपने सपने के बारे में, अपने एम के बारे में सोचिए जो आपने बनाया है, और ऐसे क्या रीजंस रहे हैं कि आज तक आप उनको पूरा नहीं कर पाए. Be honest to yourself and list down the excuses you have been offering to yourself and others for your failure. खुद से ईमानदारी दिखाइए और जो भी बहाने आप खुद से या दूसरों से बताते आए हैं उनकी लिस्ट बनाइए. ठीक है. और आपको पता चल जाएगा कि no other than you yourself is responsible for the failure. So decide yourself. You want to buy an alibi or you want to touch the sky. Okay, that's all. I hope you must have liked the idea that I have presented over here with you in this video. So keep watching English Junction A to Z. I would be in your service with more inspirational and motivational videos along with stuff related to English. Thank you. जय हिंद.